سچائی پر عمل کرنا۔ خدا کے ساتھ گہری رفاقت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اسی موضوع پر آج آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ جب یسوع مسیح صلیب پر مر گئے، اپنا خون بہایا، خیمہ کا وہ پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا جس نے مقدس مقام کو پاک ترین مقام سے الگ کر رکھا تھا، جس سے ہمارے لیے خدا کی حضوری میں داخل ہونا ممکن ہو گیا تاکہ اس کی عبادت کریں۔ اس لیے وہ کون ہے؟ لیکن یہ ایک بات ہے، ایک اور بات یہ ہے کہ کائنات کے خدا کے ساتھ سرگرمی سے رفاقت رکھی جائے، اور یوحنا اسی تعلق سے بات کر رہا ہے۔ لیکن وہ صرف یہ کہتا ہے کہ اگر ہم خدا کے ساتھ قریبی رفاقت کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، نہ صرف اپنے نجات دہندہ کے طور پر بلکہ اپنے دوست کے طور پر اور اپنے خداوند کے طور پر، تو پھر ہمیں اس کے ساتھ روز بروز لمحہ بلمحہ چلنے کے قابل بھی ہونے کی ضرورت ہے۔ صرف اس بات کے لیے ہی شکر گزار نہ ہوں کہ ہم اس کی حضوری میں داخل ہو سکتے ہیں، بلکہ شکر گزار ہوں کہ ہم اس کے ساتھ رفاقت بھی رکھ سکتے ہیں جو کائنات کا خداوند ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سچائی پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اس لیے نتیجتاً یہ وہی بات ہے جو یوحنا نے پہلے باب کی 5 آیت میں کہی، خدا نور ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو ہم نے اس سے سنا ہے اور آپ کو بتاتے ہیں۔ خدا نور ہے اور اس میں کوئی تاریکی نہیں ہے۔ اب پھر ہم اس کے ساتھ ایک اور تعلق دیکھتے ہیں جو ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں، جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے تعلق سے بیان میں نظر آتا ہے، کیونکہ یوحنا یہ منادی کرتا ہوا آیا تھا جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اور اس کا پیغام یہ تھا۔ یوحنا کی انجیل کا پہلا باب، ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے۔ جو کچھ یوحنا کہہ رہا ہے اور اس خط میں اس تعلق سے اسی بات کو دیکھ رہے ہوں گے، خدا نور ہے۔ یوحنا اس گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ یوحنا اس چھوٹے سے خط میں بھی اسی کے بارے میں لکھ رہا ہے۔ یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ مجموعی طور پر اپنے مختصر سے خط میں یہی بات کہہ رہا ہے۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا، یعنی یسوع مسیح۔ خدا نور ہے، نتیجتاً اس کا بیٹا بھی نور ہے، کیونکہ وہ مجسم خدا ہے جو باپ کی نمائندگی کرتا ہے۔ یسوع نے خود کہا کہ وہ دنیا کا نور ہے۔ ایک بار پھر یوحنا کی انجیل میں آیا ہے کہ نور تھوڑے عرصہ تک ہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے درمیان چل پھر رہا ہوں، لیکن زیادہ دیر تک نہیں۔ اور خلاصہ یہ ہے، دراصل وہ یہ کہہ رہا تھا، مجھے مصلوب کیا جائے گا، میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا، میں تھوڑی دیر تمہارے ساتھ رہوں گا اور پھر باپ کے پاس جاؤں گا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جب میں چلا جاؤں گا تو جب تک نور تمہارے ساتھ ہے اس میں چلو
ताकि तारीकी तुम पर गालिब न आए। जो तारीकी में चलता है वो नहीं जानता कि कहां जाता है। ये नाकाबिले यकीन इस्तारे हैं, नूर, अंधेरा। हम सब इसकी शिनाख्त कर सकते हैं। जब तक नूर तुम्हारे साथ है, नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बनो। यीशु ने कहा कि वो नूर है, और फिर जब हम उस पर खुदा के बेटे के तौर पर ईमान लाते हैं, तब हम नूर के फर्जंद बन जाते हैं। हमें दुनिया का नूर बनना है, और इसीलिए यूहन्ना इसके बारे में लिख रहा है, और इसे बहुत शदीद तशवीश है। और यहां एक पैराग्राफ है जो थोड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल में यहां सामईन को मुकम्मल तौर पर पहचानना के ताल्लुक से है, लेकिन यहां वो है जिसका हवाला दे रहा है। मेरा ख्याल है कि वो ये है। यहां मेरा ख्याल है कि खत के सामईन ये लोग हैं। सबसे पहले वो इनके मुखातिबीन से मुखातिब है, जिनको दुनियावी मसीही कहा जा सकता है। मेरा ख्याल है कि हमारे पास काफी नुमायां मिसाल मौजूद है कि इसका क्या मतलब है। जब आप पहला कुरिन्थियों पढ़ते हैं, क्योंकि कुरिन्थस के मसीही जिस्मानी थे, अगरचे कि वो मसीही ईमान रखते थे, लेकिन वो कई पहलुओं के एतबार से तारीकी में ही चल रहे थे। लेकिन यूहन्ना मुकम्मल तौर पर ईमान रखने वाले मसीहों के ताल्लुक से भी बात कर रहा है, यानी वो जो समझते हैं कि वो मसीही हैं, लेकिन वो हकीकत में नए सिरे से पैदा नहीं हुए। मेरा ख्याल ये बात दोनों किस्म के लोगों के लिए है। इसलिए यूहन्ना ने यह लिखा है, अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें, तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। और फिर वो मुवाजना के तौर पर जो कुछ कहता है, तो यकीनी तौर पर वो रूहानी मसीहों से मुखातिब है, या एक ऐसा मसीह जो रूह के मुताबिक चल रहा है, जैसा कि पौलुस इस इस्तिलाह को इस्तेमाल करता है। एक मसीही जो रूह कुदस के साथ चलता है। पौलुस के इस तरह के बयानात गलतियों के नाम खत में मौजूद हैं। वो कहता है, यानी यूहन्ना, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। जब हम अपने खुदावंद के साथ और एक दूसरे के साथ रफाकत में चलते हैं, तो मसीह का खून हमें साफ करता है। इसके बाद या तो वो जिस्मानी या ईमान रखने वाले मसीहों से मुखातिब होते हुए कहता है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में जरा भी सच्चाई नहीं। लेकिन इसके बरक्स इन लोगों को लिखना जो रूह में चल रहे हैं, यानी खुदावंद के साथ चल रहे हैं, यानी रूहानी मसीही, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। लेकिन यह बात दिलचस्प है, और मैं ये यकीन रखता हूं कि जो यूहन्ना यहां कहता है वो खुदावंद की सिखाई हुई दुआ से हम आहंग है। याद है आपको, यीशु ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाते हुए कहा, इसलिए तुम इस तरह दुआ किया करो, ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए। इसका ताल्लुक इस हकीकत से है कि खुदा नूर है,
खुदा पाक है, तेरी बादशाही आए, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। इसलिए यूहन्ना इन आयात में क्या कह रहा है? वो खुदा के साथ करीबी ताल्लुक के बारे में बात कर रहा है। हम खुदा और यीशु के साथ और एक दूसरे के साथ करीबी ताल्लुक नहीं रख सकते अगर हम जानबूझकर खुदा की मर्जी से बाहर जिंदगी गुजार रहे हूं। तो यह नामुमकिन है, क्योंकि खुदा नूर है और इसमें जरा भी तारीकी नहीं। अब बदकिस्मती यह है कि कुछ हैं जो ये यकीन रखते हैं कि यूहन्ना ये सिखा रहा है कि बतौर मसीही हम जिंदगी में इस मकाम तक पहुंच जाते हैं जहां हम मजीद गुनाह नहीं करते। यह निहायत दिलचस्प बात है और ये लोग इसके ताल्लुक से काफी मखलस भी हैं, लेकिन यूहन्ना हकायक की दुरुस्तगी करता है ताकि उन्हें गलतफहमी ना रहे कि वो क्या कह रहे हैं। इसलिए वो कहता है, और वो बात ये है जो दूसरे बाब में वो बयान करता है, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कुफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। दूसरे लफ्जों में वो सादा तौर पर यह कह रहा है कि यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से मुसलसल पाक करता है, यहां तक कि ईमानदार के तौर पर जब हम खुदा की मर्जी से बाहर हो जाते हैं और हम खुदा की पैरवी करने में नाकाम रहते हैं जैसा कि हमें करनी चाहिए। यह बात हमें एक दिलचस्प सवाल की तरफ ले जाती है ताकि हम गौर कर सकें और रद्द अमल का इजहार कर सकें। कुछ मसीही ये यकीन क्यों रखते हैं कि वो गुनाह से पाक जिंदगी बसर कर सकते हैं और दीगर ईमानदार गुनाह में जिंदगी बसर करना जारी रखते हैं? ये दोनों बातें ही इंतहा हैं। वो लोग जो ये यकीन रखते हैं कि वो इस मकाम तक पहुंच सकते हैं कि मजीद गुनाह न करें, तो ये तालीम कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। मेरा ख्याल है कि यूहन्ना ने इस बात को निहायत वाज़े किया है कि हमसे अक्सर ही गुनाह होता है, और जब हमसे गुनाह हो जाता है तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह। और जब लोग इस बात का यकीन करते हैं तो फिर यह होता है कि यह बात हमें इस आगाही तक ले आती है कि हमें अपने बुरे रवैये को दुरुस्त करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर मैं एक ऐसी बरादरी में, ऐसे लोगों में परवान चढ़ा हूं जो यकीन रखते हैं कि हम इस किस्म के दर्जा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं इसके बावजूद हमारे अंदर खामियां हैं और हम में कमजोरियां पाई जाती हैं। देखें, गुनाह गुनाह ही होता है। अगर हम खुदा की मर्जी से बाहर हैं तो यह गुनाह है। इसलिए हकीकत यह है कि हमसे गुनाह होगा। हम सबको इस बात का तजुर्बा है। अगर हम यह सिखाते हैं कि आप गुनाह नहीं कर सकते या आपके अंदर गुनाह नहीं और कामिल हो गए, तो आपको एक मुख्तलिफ इस्तिलाह सामने लानी होगी।
ताकि अपने गुनाह की वजाहत कर सकें। इसलिए इसका नतीजा यह है कि यह एक गलत तालीम है। अगर किसी शख्स का यह दावा है, और अगर मैं ऐसे शख्स से मुखातिब हूं जो कहता है कि उसके अंदर गुनाह नहीं और कामिल के दर्जा तक पहुंच चुका है, तो मैं उसकी बीवी से बात करना चाहूंगा और फिर हकीकत सामने आ जाएगी कि यह कितना कामिल है। और यह बात यहां कमरे में मौजूद हम में से हर एक के लिए सच है, चाहे हम रिश्ताए अज़दवाज में हूं या नहीं। अब इसका दूसरा रुख यह है कि इसका ताल्लुक उन लोगों से है जो अपनी अक्ल की बात को मानते हैं और इनके गुनाह को अक्ल की तावीलें पेश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। इसलिए अगर हम गुनाह में रहें तो उसके बारे में फिक्रमंद ना हूं, लेकिन एक मर्तबा फिर से यह झूठी तावील है, एक मर्तबा फिर यह एक गलत तफसीर है, क्योंकि बाइबल हमें वाज़े तौर पर सिखाती है कि जब हम मसीह के पास आते हैं तो हमें खुदा के फजल का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। और रोमियो 12 की 1 और 2 आयात में इसी ताल्लुक से है, खुदा की रहमतें याद दिलाकर मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा और पाक है। यही बात इफसियों 4 बाब की पहली आयत में कही गई है कि हमें अपने बुलावे के लायक चाल चलना है और उसकी मर्जी के ताबे रहना है। पौलुस अगले 3 अबवाब में इसकी वजाहत करता है कि उसकी मर्जी हकीकत में क्या है। मुझे तीतस 1 बाब की 2 आयत बहुत पसंद है। पौलुस इसमें एक भरपूर बयान पेश करता है। खुदा का फजल हमें सिखाता है, खुदा का फजल हमें दर्स देता है। एक खुदा तरस और मुकद्दस जिंदगी गुजारें, जबकि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने का इंतजार करते हैं। इसलिए मैं इस उसूल को दोहराता हूं, खुदा के साथ गहरी रफाकत हासिल करने के लिए हमें अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए और उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए।